آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ اتر پردیش میں تبلیغی جماعت کے خلاف یوگی سرکار کے ظلم کا نیا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ خبر در خبر میں آج بتائیں گے اس کی پوری تفصیل۔ اس کے علاوہ بہار کی سیاست کا تذکرہ، جہاں کنگ میکر بننے کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بتائیں گے پروفیسر بشرا عتیق کی کہانی، جنہیں ملنے جا رہا ہے سائنس کا سب سے بڑا ایوارڈ، اور آخر میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کی تفصیلات۔ لیکن پہلے آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ کسانوں کا احتجاج لگاتار 5ویں دن بھی جاری ہے۔ دلی کے انڈیا گیٹ اور دیگر کئی جگہوں پر کسانوں نے احتجاج کیا اور پرائم منسٹر نریندر مودی کا پتلا بھی جلایا۔ کسانوں کی مانگ ہے کہ کسانوں سے متعلق تینوں بل جو اب قانون بن چکا ہے اسے واپس لیا جائے۔ ٹائم میگزین میں شاہین باغ کی بلقیس دادی کا نام آنے کے بعد آج 28 ستمبر کو ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر رہنما ادت راج نے کہا، سی اے این آر سی اور این پی آر کے خلاف شاہین باغ خاتون مظاہرین نے اپنے منفرد مظاہرے سے نہ صرف پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ شاہین باغ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور اس تحریک کی گونج نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں سنی گئی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع اوریا کے آیانہ علاقے میں بیٹا کی ولادت نہ ہونے پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ پولیس میں شکایت درج ہونے کے بعد شوہر سمیت 5 سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سنگی پور کی رہنے والی متاثرہ سونی کی شادی افضال سے سال 2016 میں ہوئی تھی، جس کے بعد اس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ پچھلے 9 ماہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ضلع اٹاوا کے قصبہ بیکور میں کرائے کے مکان میں مقیم تھی۔ امریکہ نے عراق میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی ہو رہی ہے، اس لیے اب امریکہ کو اپنی سیکورٹی کا خدشہ ہے، کیونکہ اکثر وہاں امریکی سفارت خانہ کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ کورونا پازیٹیو آنے کے بعد بی جے پی لیڈر اوما بھارتی رشیکیش کے ایمس میں ایڈمٹ ہو گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں جانے سے بچنے کے لیے انہوں نے ہسپتال کا سہارا لیا ہے۔ 30 ستمبر کو سی بی آئی کی خصوصی عدالت لکھنؤ میں بابری مسجد انہدام کیس کا فیصلہ سنانے جا رہی ہے، جس میں مسجد توڑنے والے سبھی ملزموں کو حاضر رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ملزموں کی فہرست میں شدت پسند لیڈر اوما بھارتی کا نام سب سے آگے ہے۔ اور اب بات آج کے اصل مدعے کی۔ بھارت میں تبلیغی جماعت کے ممبران پر جو ظلم ہوا ہے اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملے گی۔ کورونا وائرس کیسے پھیلا، کس نے پھیلایا، کیوں پھیلا، اس حوالے سے سب کچھ واضح ہو چکا ہے اور پہلے بھی واضح تھا۔ سچائی مزید سامنے آ گئی ہے۔ بمبے ہائی کورٹ، دلی ہائی کورٹ، الہ آباد ہائی کورٹ، مدراس ہائی کورٹ، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا بھی تبصرہ آ چکا ہے۔ حکومت، پولیس اور میڈیا سبھی کو واضح طور پر بتایا گیا، ان کی تنبیہ کی گئی، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، لیکن مسلم دشمنی میں یہ سب اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تازہ معاملہ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے جماعت کے 7 ممبران کا ہے، جنہیں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کے باوجود 1 مہینہ تک زبردستی جیل میں رکھا گیا۔ 25 مارچ کو جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو اس وقت انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے جماعت کے 7 ممبر الہ آباد کے ایک مسافر خانہ میں قیام پذیر تھے۔ اسی رات مقامی پولیس نے تبلیغی مرکز اور مسلم مسافر خانے پر چھاپا مارا اور تمام تبلیغی جماعت کے ممبران کو اپنی حراست میں لے لیا اور تمام افراد کو فوری طور پر کوارنٹین کر دیا گیا۔ یہ تمام افراد صرف 7 تھے، یعنی 7 ممبرز تھے جو ایک جگہ مقیم تھے۔ کئی بار ان سبھی کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، لیکن تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ممبر کورونا پازیٹیو نہیں پایا گیا، سب کی رپورٹ نیگیٹو آئی۔ اس کے باوجود 25 اپریل کو غیر ملکی تبلیغی کارکنان پر کئی سنگین تعزیراتی دفعات لگا کر نینی سینٹرل جیل انہیں بھیج دیا گیا۔ گرفتار کیے گئے تبلیغی کارکنان کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی۔ پچھلے 24 اگست کو الہ آباد ہائی کورٹ نے 7 انڈونیشیائی شہریوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا،
लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ज़िला अदालत ने रिहाई का परवाना जारी करने में 1 महीना का वक्त लगा दिया और कहा जा रहा है कि यह सरकार के इशारे पर हुआ। काफ़ी मशक्क़तों के बाद अब इंडोनेशिया के तबलीगी कारकुनान को रिहाई नसीब हो गई है और उनका अपने मुल्क जाना यकीनी हो गया है। कौन है प्रोफेसर बुशरा अतीक जिसने जीता है साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT की मारूफ प्रोफेसर बुशरा अतीक को इस साल शांति सौरभ भंटागर अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। शनिचर के रोज़ प्रोफेसर अभय करंदेकर ने ट्वीट करके इस सिलसिले में जानकारी दी और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। प्रोफेसर बुशरा अतीक को यह अवार्ड मेडिकल शोबा में उनके कारहाय नुमाई यानी बेमिसाल कारनामों को देखते हुए दिया जा रहा है। उनका नाम इस अवार्ड के लिए फाइनल तो हो गया है, लेकिन अभी अवार्ड पेश करने की तकरीब से मुताल्लिक़ किसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। शांति सौरभ भंटागर भारत में साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड है। साइंस, मेडिकल, जोग्राफिया जैसे शोबों में नुमाया और तारीख़ी कारनामा अंजाम देने वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। हर साल किसी एक को उसकी खिदमात की बुनियाद पर इस अवार्ड के लिए नामज़द किया जाता है। अवार्ड का ऐलान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पूरी तहकीक के बाद करती है और चेयरमैन के फैसला के बाद इसका ऐलान होता है। इस अवार्ड की बुनियाद 1958 में रखी गई थी, तब से अभी तक ये सिलसिला जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करने वाली प्रोफेसर बुशरा अतीक को इस एजाज़ से सरफराज किए जाने की खबर फैलने के बाद MU में खुशी का माहौल है और उनके मुतल्लिक़ीन अहबाब लगातार उन्हें मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं। प्रोफेसर बुशरा अतीक कैंसर पर कई तरह की तहकीक और रिसर्च कर चुकी हैं और पहले भी उन्हें कई तरह के एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, अवार्ड दिया जा चुका है। इस वक्त प्रोफेसर बुशरा बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग महकमा IIT कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने फरवरी 2013 में IIT ज्वाइन किया। उस वक्त से लेकर आज तक कैंसर के असबाब और उसके इंसदाद यानी रोकथाम पर लगातार काम कर रही हैं। उनके साथी साइंसदानों ने कई तरह की जैन और खलियात की गड़बड़ी का पता लगाया है, जिनकी शुरुआती दिक्कतें होने पर आगे चलकर ट्यूमर बन जाता है। उन्होंने मर्दों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर की वजह का भी पता लगाया, जिनके लिए 2018 में उन्हें CNR रॉ फैकल्टी अवार्ड भी मिला था। प्रोफेसर बुशरा ने ब्रेस्ट कैंसर की दवाओं पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। प्रोफेसर बुशरा अतीक ने 1995 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BSc, 1997 में MSc और 2003 में PhD किया। उन्हें 2009 में सैन फ्रांसिस्को की जानिब से जेनेटिक पोस्ट डॉक्टरल अवार्ड से नवाजा गया। 2010 में यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड, 2011 में अमेरिकन रिसर्च एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च की जानिब से कैंसर रिसर्च स्कॉलर अवार्ड और 2013 में रमानो जीन फेलोशिप अवार्ड भी मिल चुका है। डॉक्टर बुशरा अतीक को इस कामयाबी पर मेरी तरफ से भी हज़ार मुबारकबाद। कवर स्टोरी में इस वाक़या को, इस न्यूज़ को शामिल करने का मकसद ये बताना है कि अगर आप में सलाहियत है, टैलेंट है, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी और डॉक्टर बुशरा अतीक ने ये कर दिखाया है। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों का नाम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक एनडीए के खिलाफ कोई भी मजबूत अलायंस सामने नहीं आया है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ फाइनल हो गया है। सीटों के बंटवारा का ऐलान सिर्फ बाकी रह गया है। नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा भी बना दिया गया है और जीतने के बाद वही वजीर आला होंगे, ये भी तय है। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी तेजस्वी यादव को वजीर आला का चेहरा बनाना चाहती है और कांग्रेस इस पर राजी नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस अकेले भी पूरे बिहार में चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा कई छोटे छोटे अलायंस बिहार में बन रहे हैं। पिछले दिनों एक अलायंस असदुद्दीन ओवैसी ने डॉक्टर यादव के साथ मिलकर बनाया, जिसका नाम रखा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर।
आज 28 सितंबर को एक और अलायंस पप्पू यादव ने बनाया है, जिसमें पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी, SDPI और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भीम आर्मी शामिल है। पप्पू यादव ने कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को भी अपने अलायंस में शामिल होने की दावत दी है। एक और अलायंस यशवंत सिन्हा ने बना रखा है। हर अलायंस अपने आप को थर्ड फ्रंट के तौर पर पेश कर रहा है। दलित रहनुमा प्रकाश अंबेडकर भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो जारी करके असदुद्दीन ओवैसी से रिक्वेस्ट की है कि उनको अपने अलायंस में शामिल कर लें। किसी दूसरे के सहारे अपनी नैया पार लगाने वाली दो पार्टियों का मामला भी फंसा हुआ है। एक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो NDA और RJD के गठबंधन में शामिल होने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं भी उनका जुगाड़ नहीं बन पा रहा है। दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी को NDA में पहली जैसी इज्जत और सीट नहीं मिल रही है, इसलिए वो अपना दावपेच खेलने में मसरूफ है। चिराग पासवान कभी कहते हैं कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कुछ और कभी कुछ और। NDA का दावा है कि दोबारा हमारी ही सरकार बनेगी। RJD का दावा है कि नीतीश कुमार की हुकूमत इस मर्तबा ख़त्म हो जाएगी, तेजस्वी यादव वज़ीर आला बनेंगे। इसके अलावा जितनी पार्टियां हैं, जितने अलायंस से, वो सब खुद को किंग मेकर बनने का दावा कर रहे हैं। मतलब ये कि तेजस्वी यादव वज़ीर आला बने या नीतीश कुमार वज़ीर आला बने, चाबी हमारे हाथ में होगी। हमारे पास इतनी सीटें आ जाएंगी जिससे हुकूमत साजी का पेच फंसेगा और जिसको हमारा यानी थर्ड फ्रंट का या जो किंग मेकर बनने का दावा कर रहे हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, उसी की सरकार बनेगी, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ। छोटी छोटी पार्टियों में फिलहाल MIM की पोजीशन बेहतर है। मिलर टाइम्स के YouTube पर एक सर्वे भी इस हवाले से किया गया, जिसका नतीजा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तकरीबन 30,000 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया है, जिनमें से 79% वोट MIM के बारे में है, बकिया 4-5% दूसरी पार्टियों के हक में है। दीगर पार्टियों में सबसे ज़्यादा CPM को 7% आया है, उसके बाद SDPI को 5% है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख की सरहद पर दूसरे दिन सोमवार को भी जंग जारी है। इस खित्ते में आर्मीनियाई मिलिट्री फोर्सेस और आज़री फोर्सेस के बीच लड़ाई इतवार 27 सितंबर की सुबह शुरू हुई थी, जो आज सोमवार को दूसरे रोज़ भी जारी है, बल्कि मंगल की रात तक जारी है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ टैंकों और भारी तोप खाने का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने आज पीर के रोज़ बाको में कहा, आर्मीनियाई फोर्सेस के हमलों में अब तक कम से कम 6 आम शहरी हलाक हो चुके हैं और 19 ज़ख्मी हैं। दूसरी तरफ नगोर्नो कराबाख पर काबिज़ शिद्दत पसंद ईसाइयों के गिरोह ने बताया कि इस लड़ाई में आज पीर की सुबह तक उसके 15 सिपाही हलाक हो चुके थे, जबकि ज़ख्मियों की तादाद भी 200 के करीब पहुँच चुकी है। ज़ख्मियों में नगोर्नो कराबाख की फोर्सेस के अलावा आम आर्मीनियाई बाशिंदे भी शामिल हैं। इस बीच आर्मीनिया ने तुर्की पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तुर्की ने शाम से 4000 जंगजुओं को आज़रबाईजान भेज रखा है, जो आज़रबाईजानी मिलिट्री फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं। तुर्की ने आज़रबाईजान की खुली हिमायत का ऐलान कर रखा है और आर्मीनिया से कहा है कि वो जंग बंद करे और मुज़ाकरात के लिए आमादा हो। जिस इलाके के लिए लड़ाई हो रही है उसका नाम है नगोर्नो कराबाख, जो हकीकी तौर पर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क आज़रबाईजान का है। 1990 में आर्मीनिया ने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद मुसलसल लड़ाई जारी है। खबर में आज इतना ही। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।